Let's have the concept of enthalpy. So in first law of thermodynamics, we studied that change in internal energy is equal to heat supplied minus work done by the system. So from this equation, we can write that heat supplies is equal to change in internal energy plus PV. Now the change in heat will be equal to change in internal energy plus change in pressure or volume. Now in one condition I can write delta PV and I can write P delta V क्योंकि डेल्टा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा. So I write delta Q is equal to change in internal energy plus change in pressure into volume plus pressure into change in volume. Now usually हमारे पास प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है इन थर्मोकेमिस्ट्री. Since pressure is constant, so delta P is equal to 0 and this value assumes the form of 0. So we get delta Q is equal to delta E plus P delta V. Now ये जो हमारे पास delta Q है, this is basically telling us the heat content of the system. यानी वो हीट जो सिस्टम ने सराउंडिंग्स के साथ एक्सचेंज की है, दैट इज़ द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम. अब ये जो हीट सराउंडिंग्स के साथ एक्सचेंज हुई है सिस्टम की, सो इट कैन आइदर बी यूज टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी और डू प्रेशर वॉल्यूम वर्क. So this heat content is also termed as enthalpy of the system. So enthalpy is basically the heat content of the system, and this heat content is the sum of internal energy plus work. तो सिस्टम का जो हीट कंटेंट होगा, जो इसमें हीट आएगी, ऐड होगी या इसमें से जाएगी, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी और वर्क. सो दिस हीट कंटेंट इज़ कॉल्ड enthalpy. नाउ सिंस हम कांस्टेंट प्रेशर पे लेते हैं ज़्यादातर थर्मोकेमिकल इक्वेशंस को या थर्मोकेमिकल डीलिंग्स को, सो नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर द हीट is equal to change in internal energy plus P delta V, and we also term it as change in enthalpy. So now in the last lecture we learned कि जब हम हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम को, जब उसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो वो हीट क्या करती है, सिस्टम की सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है, वर्क नहीं करती. और अगर हम सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट हम सिस्टम को देते हैं वो सिस्टम की इंथैल्पी या हीट कंटेंट को चेंज करती है. Now let's see different types of enthalpies that we have. So first enthalpy is enthalpy of a reaction. Now suppose मेरे पास given moles of reactant हैं, they react together and form given mole of the product. So जब reactants react करते हैं एक दूसरे के साथ और गिवन मोल ऑफ प्रोडक्ट हमें सप्लाई करते हैं, तो इस पूरे रिएक्शन के केस में जितनी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज़ होगी उसको हम कहेंगे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. नाउ कीप इन माइंड कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स के जितने भी मोल्स फॉर्म हों, द इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, और पूरे रिएक्शन में टोटल हीट जो रिलीज़ या एब्जॉर्ब होगी, इट इज़ कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. Now enthalpy of reaction is basically equal to the heat content of products minus the total heat content of reactants. तो heat content of products को हम heat content of reactants से जब subtract करेंगे तो हमारे पास heat of reaction आ जाएगी. It can either be exothermic or endothermic. अगर heat content of products ज़्यादा है और reactants कम है, in that case the reaction will be endothermic because this value will be positive. और अगर heat content of products कम है और heat content of reactants ज़्यादा है, in that case delta HR will be negative and the reaction will be exothermic.
The next enthalpy is enthalpy of formation. So enthalpy of formation is the amount of energy released or absorbed when certain number of moles of reactants react together to give us 1 mole of product. तो हमारे पास किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल बनाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उस हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया एंड आई गॉट वाटर. तो वाटर का 1 मोल बनाने के लिए जितने रिएक्टेंट्स यूज़ होंगे और वो रिएक्ट करके जितनी एनर्जी रिलीज़ या एब्जॉर्ब करेंगे उस हीट को हम कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन. नाउ कीप इन माइंड कि हमारे पास एलिमेंट्स के बारे में ये एज्यूम किया जाता है कि एलिमेंट्स हमारे पास अर्थ में फ्रॉम द बिगिनिंग प्रेजेंट हैं. सो अगर किसी भी एलिमेंट की हम हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो किसी भी एलिमेंट की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, बट कंपाउंड्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन ज़ीरो नहीं होगी. एंड कीप इन माइंड कि हीट ऑफ फॉर्मेशन को हम स्टडी करते हैं स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस के लिए, जिस तरह वाटर की स्टैंडर्ड स्टेट है लिक्विड स्टेट. सो अगर हम इसको किसी और फॉर्म में गैशियस में या सॉलिड में स्टडी करेंगे देन द वैल्यू ऑफ दिस विल बी चेंज्ड. नाउ अगर ऊपर वाले रिएक्शन के लिए हम हीट ऑफ फॉर्मेशन देखें तो ऊपर वाले रिएक्शन में हमारे पास 2 मोल्स HI के बन रहे हैं. तो अब इसकी जो हीट ऑफ रिएक्शन होगी इट विल बी गिविंग अस द हीट दैट इज़ रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 2 मोल्स ऑफ HI आर फॉर्म्ड. अब इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, 1 मोल ऑफ HI की फॉर्मेशन की हीट फाइंड करनी है. तो हीट ऑफ रिएक्शन में 2 मोल्स हमारे पास बन रहे हैं. हीट ऑफ रिएक्शन को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मोल ऑफ HI की फॉर्मेशन की हीट हमारे पास आ जाएगी. नेक्स्ट हीट दैट वी हैव इज़ enthalpy of combustion. Enthalpy of combustion is basically the amount of heat released when we combust or burn 1 mole of a substance in excess of oxygen. So जब हम 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होगी दैट विल बी कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन. दिस इज़ 891 किलो जूल पर मोल इन केस ऑफ मीथेन. सो नाउ हमने मीथेन के 1 मोल को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न किया तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ हुई है दिस इज़ कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन. नाउ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन यूजुअली हैज़ अ नेगेटिव वैल्यू एंड इट इज़ यूजुअली एक्सोथर्मिक बिकॉज कंबस्शन के रिज़ल्ट में यूजुअली हमारे पास हीट रिलीज़ होती है. Next is enthalpy of neutralization. So enthalpy of neutralization is when 1 mole of aqueous hydrogen ions from an acid neutralize 1 mole of aqueous hydroxyl ions from a base and give us the neutralization product water. तो जब 1 मोल ऑफ H प्लस आइंस 1 मोल ऑफ OH माइनस आइंस के साथ रिएक्ट करेंगे और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके वाटर बनाएंगे तो इस केस में जो हीट रिलीज़ होगी दैट विल बी कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. नाउ अगर हम वीक एसिड्स और वीक बेसिस की बात करें तो वीक एसिड्स और वीक बेसिस फुली आयोनाइज नहीं होते. तो इनकी फुल आयोनाइज ना होने की वजह से हमारे पास इनकी जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो कम होती है. लेकिन अगर मैं कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड लूँ तो स्ट्रॉन्ग एसिड मुझे फुली H प्लस देगा और स्ट्रॉन्ग बेस मुझे फुली OH माइनस देगी. तो जब 1 मोल H प्लस फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड विल रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ OH माइनस फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड गिव अस water, so in that case heat of neutralization is minus 57.4 kilojoules per mole. तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस को जब न्यूट्रलाइज करेगा तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी सेम. Now HCl is monobasic acid and NaOH is monoacidic base. अगर यही रिएक्शन मैं परफॉर्म करता हूँ विद H2SO4 एंड CaOH2, सो बोथ ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. लेकिन अब इसमें मेरे पास H2SO4 से
2 हाइड्रोजन के आयंस निकलेंगे और OH के भी 2 आयंस निकलेंगे। सो इन दैट केस हमारे पास डबल न्यूट्रलाइजेशन होगी, तो हमारे पास हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय द नॉर्मल वैल्यू -57.4 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट इंथैल्पी चेंज इज इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, या जिसको हम सॉलिड्स की केस में इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी कहते हैं। सो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है? सपोज आई हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस। इस क्लोरीन गैस को मैं स्प्लिट करता हूँ क्लोरीन के सेपरेट गैशियस एटम्स के अंदर। यानी मैंने क्या किया कि क्लोरीन की गैस के मॉलिक्यूल जिसमें 2 क्लोरीन एटम्स इकट्ठे थे उसको सेपरेट कर दिया इनटू सेपरेट एटम्स ऑफ क्लोरीन। सो जब कभी हम किसी भी सब्सटेंस को सेपरेट गैशियस एटम्स में कन्वर्ट करते हैं और उस केस में जो हीट एब्जॉर्ब होती है दैट इज़ कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इसी तरह अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो जब हमारे पास सोडियम सॉलिड फॉर्म में होगा तो देयर विल बी मिलियंस ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम इन सॉलिड फॉर्म। तो अब हम इन सारे एटम्स को एक दूसरे से अलग कर दें, सॉलिड को ब्रेक कर दें और सोडियम को ले जाएं गैशियस फॉर्म में। सो इस केस में भी हम जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हीट ऑफ एटोमाइजेशन, या सॉलिड की केस में यूजुअली हम इसको हीट ऑफ सब्लिमेशन कहेंगे। नेक्स्ट इंथैल्पी इज़ इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली क्या है? सपोज आई हैव डिज़ोल्व्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन वाटर। तो जब हमारे पास कोई भी सब्सटेंस वाटर में डिज़ोल्व होगा तो डिसोल्यूशन के प्रोसेस में कुछ हीट चेंज आएगी। अब अगर मैं इसमें मज़ीद सॉल्वेंट ऐड करता हूँ और इसको डाइल्यूट करता हूँ तो अब हमारे पास सॉल्वेंट और सोल्यूट के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो रीएडजस्ट होंगी, तो फिर दोबारा हमारे पास एक हीट चेंज आएगी। अब मैं इसमें मज़ीद सॉल्वेंट ऐड करता हूँ तो अब मेरे पास दोबारा हीट चेंज आएगी, क्योंकि हमारे पास जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो बारी बारी अपनी कॉन्सेंट्रेशन को एडजस्ट करेंगे, सॉल्वेंट की फोर्सेस के साथ ख़ुद को एडजस्ट करेंगे, तो हीट चेंज आती रहेगी। अब मैं जब तक सॉल्वेंट ऐड करता जाऊंगा हीट चेंज आती रहेगी। एक पॉइंट पे हमारे पास सॉल्वेंट को मज़ीद ऐड करने से हीट चेंज आना स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि वो पॉइंट ऐसा होगा कि उस पॉइंट पे जो सोल्यूट है वो इतना डाइल्यूट हो चुका होगा सॉल्वेंट के अंदर कि मज़ीद सॉल्वेंट ऐड करने से कोई हीट चेंज नहीं आएगी। तो अब इस पॉइंट तक, यानी इनफिनिट डाइल्यूशन के पॉइंट तक जितनी हीट चेंज शुरू से लेके अभी तक आई है, इस टोटल हीट चेंज को हम कहेंगे इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। So it is the heat absorbed or released when 1 mole of a solute is dissolved in solvent till infinite dilution. So this is called enthalpy of solution. Now इन टाइप्स ऑफ डिफरेंट इंथैल्पीज़ को यूजुअली मेजर किया जाता है बाय थर्मोकेमिकल प्रोसेस कॉल्ड कैलोरीमीट्री। सो कैलोरीमीट्री से हीट चेंजेस को यूजुअली मेजर किया जाता है। Now let's take the concept of heat capacity, which is called C. So heat capacity is the amount of heat required to raise temperature of a given mass of a substance by 1 Kelvin or 1 degree centigrade. So आपको जितना भी किसी substance का mass दे दें, चाहे वो 5 kg है या 8 kg है, सो इस पूरे मैस के टेम्परेचर को अगर आपने राइज़ करना है बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी उसके इनिशियल टेम्परेचर से 1 डिग्री टेम्परेचर को और ज़्यादा करना है, सो उस केस में जितनी हीट हमें रिक्वायर्ड होगी इट इज़ कॉल्ड हीट कैपेसिटी विच इज़ डिनोटेड बाय C. So we can simply write कि total heat absorbed will be equal to heat capacity of the substance multiplied by the change in temperature. So this is the equation that relates heat absorbed to the heat capacity and change in temperature.
Specific heat capacity is the amount of heat required to raise temperature of a unit mass of a substance by 1 degree centigrade or 1 Kelvin. So आपको एक substance का unit mass दे दिया which can be either 1 mole or 1 Kelvin. So इस 1 kg सॉरी सो इस यूनिट मास यानी गिवन मास, अब हीट कैपेसिटी में मास कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी द मास विल बी यूनिट मास आइदर 1 मोल और 1 kg. सो इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के टेम्परेचर को अगर हमने राइज़ करना है बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड, सो इसके लिए जो हमें हीट चाहिए होगी उस हीट को हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. Now in this case the total heat absorbed will be equal to the mass of substance, जितना mass हमने लिया है, multiply by specific heat capacity multiply by delta T. So now यहाँ से हम relationship निकाल सकते हैं कि heat capacity of a substance is equal to its specific heat capacity into the given mass of substance. Now the next is very important statement, that is Hess law of constant heat summation. Hess law states that when a process occurs directly or in a series of steps, the heat changes will be same in both the cases provided that the conditions are same. Now explaining it, suppose मेरे पास एक reactant है A और इससे मैंने एक product बनाया है D. Now this reaction has occurred directly. So now this heat change is basically heat of formation of D. Now suppose कि ये जो रिएक्शन है जिसमें A डायरेक्टली D में कन्वर्ट हुआ है, ये अब सीरीज़ ऑफ स्टेप्स में होता है. सीरीज़ ऑफ स्टेप्स में ऐसे होता है कि A पहले कन्वर्ट हुआ इनटू B, देन B कन्वर्ट हुआ इनटू सब्सटेंस C और अब C कन्वर्ट हुआ इनटू D. अब इन स्टेप्स में जो फर्स्ट स्टेप है उसकी हीट चेंज है डेल्टा H1, जो सेकंड स्टेप है उसकी हीट चेंज है डेल्टा H2 और जो थर्ड स्टेप है उसकी हीट चेंज है डेल्टा H3. तो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ अगर हमारे पास A से D डायरेक्टली बनेगा तो जो हीट चेंज हमारे पास आएगी दैट विल बी इक्वल टू द टोटल हीट चेंज इन दैट केस कि अगर ये इनडायरेक्टली बनेगा. तो डायरेक्टली बनने में जो हीट आई है हमारे पास दैट इज़ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टी. अगर ये इनडायरेक्टली बनेगा तो टोटल तीनों स्टेप्स की हीट को हम सम करेंगे तो ये टोटल हीट है इनडायरेक्टली ए से डी बनाने में जो इन्वॉल्व है. सो ए से डी जब इनडायरेक्टली बनेगा तो टोटल हीट विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3. So this total heat in indirect steps will be equal to the total heat in direct step provided कि direct step के जो reaction है उसकी conditions भी same हैं और indirect step की conditions भी same हैं. So this is Hess law of constant heat summation. Now Hess law की एक बहुत important application है Born-Haber cycle. Now usually what we do, हमारे पास जो आयनिक सॉलिड्स हैं उनकी लैटिस एनर्जी को फाइंड आउट करना मुश्किल है. सो हम आयनिक सॉलिड्स की लैटिस एनर्जी को यूजुअली बॉर्न-हैबर साइकिल की मदद से फाइंड आउट करते हैं. नाउ लेट्स सी हाउ. तो सबसे पहले इन फर्स्ट स्टेप मैं एज्यूम करता हूँ कि मैंने सोडियम को सॉलिड स्टेट में लिया और इसको रिएक्ट करवाया विद क्लोरीन गैस. नाउ सोडियम सॉलिड जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो what we will get sodium chloride solid. Now this is a direct step और इस डायरेक्ट स्टेप की जो हीट चेंज है दैट इज़ इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl. नाउ अगर मैं इस रिएक्शन को सीरीज़ ऑफ स्टेप्स में स्प्लिट करता हूँ और एक एक स्टेप की हीट चेंज को स्टडी करता हूँ तो NaCl बनाने के लिए सबसे पहले व्हाट विल हैपन विद सोडियम. सबसे पहले हमारे पास सोडियम सॉलिड फॉर्म में से सेपरेट होगा और हमारे पास सोडियम कन्वर्ट होगा इनटू सॉलिड सोडियम गैशियस. सो इस प्रोसेस की जो हीट चेंज होगी दैट विल बी इक्वल टू हीट ऑफ एटोमाइजेशन और हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ
सोडियम। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो गैशियस सोडियम एटम आया था, ये गैशियस सोडियम एटम क्या करेगा, आयोनाइज करेगा इनटू सोडियम पॉजिटिव गैशियस आयन एंड इट विल लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ इस प्रोसेस में जो हीट चेंज है दैट इज़ कॉल्ड हीट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, क्योंकि इस केस में सोडियम आयोनाइज हो रहा है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस विल अकर विद क्लोरीन। सो हमारे पास क्लोरीन फर्स्ट ऑफ ऑल है गैशियस फॉर्म में। सो क्लोरीन सबसे पहले ख़ुद को गैशियस फॉर्म में एटोमाइज़ करेगा, यानी मॉलिक्यूल के अंदर से एटम्स सेपरेट हो जाएंगे। सो इस केस में जो हमारे पास हीट आएगी दैट इज़ हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। देन नेक्स्ट स्टेप में क्लोरीन का जो सिंगल एटम बना है एटोमाइजेशन के बाद, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जो सोडियम ने लूज़ किया है और कन्वर्ट होगा इनटू Cl नेगेटिव गैशियस आयन। नाउ इस प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज़ होगी उसको हम कहेंगे हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का गैशियस एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। सो दिस इज़ हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सो अब इन सारे प्रोसेसेस के रिज़ल्ट में हमारे पास दो चीज़ें आ चुकी हैं। फर्स्ट जो हमारे पास चीज़ आई है दैट इज़ पॉजिटिव गैशियस सोडियम आयन, और दूसरी जो चीज़ आई है दैट इज़ नेगेटिव गैशियस क्लोराइड आयन। सो जब पॉजिटिव गैशियस सोडियम आयन नेगेटिव गैशियस क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट होगा इनटू NaCl सॉलिड, सो इस केस में जो हीट चेंज आएगी उसको हम कहेंगे लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। सो यूँ बॉर्न-हैबर साइकिल की मदद से हमने फर्स्ट स्टेप लिया जो कि डायरेक्ट स्टेप है, और फिर हमने इन दोनों की रिएक्टिविटी को या रिएक्शन को स्प्लिट किया इनटू डिफरेंट स्टेप्स। तो अब हम हेस लॉ अप्लाई करके लैटिस एनर्जी ऑफ अननोन सॉल्ट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जिन सॉल्ट्स की लैटिस एनर्जी अननोन है उनको हम बॉर्न-हैबर साइकिल की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो डायरेक्ट प्रोसेस की जो हीट चेंज है दैट इज़ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। सो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ दिस टोटल हीट चेंज इन डायरेक्ट प्रोसेस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, this heat change equals all the heat changes in indirect processes. So now first heat है हमारे पास heat of atomization of sodium. Then next process है heat of ionization energy of sodium. Then next process is heat of atomization of chlorine. Then next process is heat of electron affinity of chlorine. And in the last we have heat of lattice energy of NaCl. So basically we know the heat of formation of NaCl, we know the heat of atomization of sodium, we know heat of ionization energy of sodium, we know heat of atomization of chlorine, we know heat of electron affinity of chlorine, we don't know this thing. So बाकी सब वैल्यूज़ को जब हम पुट इन करके सिंप्लीफाई करते हैं सो लेटिस एनर्जी ऑफ NaCl कम्स आउट टू बी -787 किलो जाउल पर मोल। सो यूँ हेस लॉ और बॉर्न-हैबर साइकिल की मदद से हम किसी भी सॉलिड की लेटिस एनर्जी को यूजुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर थर्मोकेमिस्ट्री। थैंक यू।